So, very good evening, friends. Today we'll start with practice MCQ, which has been shared by Soni Chako ji. So I would request him to please read the questions. Soni Chako ji, I made you co-host. Please read the questions. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Question 1. There is a 6 set of 4 questions of 10 each. And Okay. in the first set, the question 1 is, what is the primary purpose of a social audit? The options are to measure the financial performance of a company, to measure the environmental impact of a company, to assess a company's social responsibility and its impact on society, to analyze the managerial structure of a company. What is the answer? All of us can have the options. So that if you reduce, then we can mark the answer in that other column. Okay. In the columns. Okay. If all of us have C, then just mark C. These are simple questions. That I think. हाँ जी, बताइए कोई आंसर क्या है इसका? C. To assess a company's social responsibility and its impact on society. क्यों चाको जी, यही सही लग रहा? Yeah, correct. है ना? And moreover, they may ask the question in another form: how could the primacy of social intent be established? A, B, C, D. उसमें से बिल्कुल हाँ. Next question देखते हैं. Yeah. Next one is, which Indian legislation introduced the concept of social impact assessment into the purview of compliance? Companies Act 2013, Companies Corporate Social Responsibility Policy Amendment Rules 2020, Indian Contract Act 1872, Industry Disputes Act 1947. B होना चाहिए. Yeah. B ही लग रहा है इसका आंसर ना? B. Next देखते हैं. What is the primary difference between social audit and the financial audit? What is the primary difference? The subject matter of audit, the number of stakeholders involved, the frequency of the audits, the type of organizations being audited. D. Type of organization. A. सब्जेक्ट मैटर भी हो सकता है. I think सब्जेक्ट मैटर भी हो सकता है. सब्जेक्ट मैटर ही लग रहा है. हाँ जी. ऑर्गेनाइजेशन तो सर एनपी और फॉर प्रॉफिट दोनों ही कवर होती हैं. हाँ, दोनों ही कवर होंगी. हाँ जी. क्यों चाको जी? Yeah, that we can mark and then go back to go to the answers, right? After discussing, right? Okay, A should be the answer, huh? Subject matter of A audit. and yeah, somebody told that D is also answer. D, okay. So let us mark D also. Next. Which Indian organization is responsible for the development of the social audit standards? SEBI. This is simple one. Just so we can skip. ICA, SIO, and ICA cost, and then NISM, and then MCA. NISM है ना आंसर C. The Indian organization is responsible. Institute of Chartered Accountants. इंस्टीट्यूट ने किया है. B होना चाहिए. B है. Yeah, correct. Next देखिए. What is the primary objective of the National Guidelines on Responsible Business Conduct, NGRBC? To encourage business to contribute towards broader development goals, to enforce strict environmental regulations on business, to increase the profitability of business, to promote corporate transparency and accountability. This I taken from a sentence. That there is a sentence in the text. Okay. मुझे तो D लग रहा है इसमें. D आंसर सर D होना चाहिए. To promote corporate transparency and accountability.
ए क्यों नहीं हो वैसे तो सकता? ए भी ठीक लग रहा है, ए में भी मतलब अगर सोशल है तो टुवर्ड द ब्रॉडर डेवलपमेंट गोल्स, ये भी हो सकता है, ए और डी भी है, पर ज्यादा चांसेस प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, ए भी ठीक लग रहा है और डी भी ठीक लग रहा है। किसका सर, कौन सा कर रहे हैं सर? क्वेश्चन नंबर 5, तो दोनों मार्क करते हैं, ए और डी, बाद में देख लेंगे आंसर क्या है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which Indian social development program guarantees 100 days of unskilled manual labor for adult members in rural households? मनरेगा। मनरेगा। हाँ, ये तो मनरेगा। मनरेगा ही है, ठीक है। हाँ जी। तो ये आंसर हो गया इसका डी, ठीक है। मनरेगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? प्राइमरी फोकस क्या है? ए होना चाहिए। तो ए यही लग रहा। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू NGRBC, which type of companies in India must comply with business responsibility and sustainability reporting requirements? पब्लिकली लिस्टेड कंपनी ही तो होगा, पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज ए। नहीं, मेरे हिसाब से तो शायद 1000 का फिगर कहीं आ रहा था उसमें। मैं तो चैप्टर पढ़ा नहीं, मैं तो गैस मार रही हूँ, मतलब मैं तो अटेंड नहीं किया था मैंने चैप्टर। तो डी है, डी आंसर है। 1000 आएगा, 1000 लिस्टेड कंपनीज, 1000 वाला आएगा शायद। कैसे? हाउ सर? नहीं, वो बुक में लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है वो। हाँ, नहीं सर, मैंने चेक कर लिया है, पेज नंबर क्या? बता देता हूँ। ये वो 1000 वाली लगती है, सेबी रेगुलेशन में। पेज नंबर 88 देखो सर, पेज नंबर 88 देखो। पेज नंबर 88 का नीचे से तीसरा लाइन देख लो। अच्छा, टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज मेंटेन करेंगी, ओके। लिस्टेड तो नहीं लिखा, लिखा है 1000 कंपनीज इन इंडिया, टॉप 1000 कंपनीज इन इंडिया। इसमें लिखा है टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी, ऑप्शन सी में। That I only corrected. I thought that it is listed. एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ अ सोशल ऑडिटर? ए आएगा, ए आएगा, हाँ, ए आएगा मेरे हिसाब से। डी ए और अमरीश। रिव्यू एंड यही होना वेरीफाई चाहिए। सोशल ना, अकाउंट्स। ए सोशल अकाउंट्स, ए टू रिव्यू एंड वेरीफाई, ए डी टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी सप्लाई चेन ऑन द एनवायरनमेंट। पर सोशल अकाउंट ही तो पहले तो सोशल अकाउंट करेगा, उसको स्टेटमेंट भी तो सोशल अकाउंट की देनी पड़ती है, मतलब सोशल रिपोर्ट। ए होना चाहिए, आई डोंट नो। हाँ जी, ए के अलावा एनी अदर आंसर? सर सी भी हो सकता है। सी बोलता है टू मॉनिटर एंड इवैल्यूएट कंपनीज डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज। वो सोशल ऑडिटर का काम थोड़ी है। अगर सोशली रेलिवेंट या सोशल इम्पैक्ट लिखा होता तो हाँ, तो सोशल तो कहीं लिखा ही नहीं है। चलो खैर, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज रिस्पांसिबल फॉर ऑडिटिंग द एनुअल इम्पैक्ट रिपोर्ट ऑफ अ सोशल एंटरप्राइज? सोशल ऑडिट फॉर्म सी सी होगा सर। सोशल ऑडिट फर्म में एम्प्लॉइंग सोशल ऑडिटर। डी है, सी है? चलिए, सी सी। इसके अंदर अगर से वो देखा है तो एनुअल इम्पैक्ट रिपोर्ट सोशल ऑडिटर देगा ना, तो फिर आंसर नन ऑफ द अबव आना चाहिए, क्योंकि सोशल ऑडिट फर्म है। अगर सोशल ऑडिटर अगर सोशल ऑडिट फर्म का पार्ट है तब भी, तो आंसर तो वैसे सोशल ऑडिटर होना चाहिए। नहीं यही नहीं आंसर फॉर्म है, फॉर्म को ही करना होता है। तो फिर तो सी है आंसर। तो पहला आंसर है जी सी। देखते हैं किसने सही आंसर दिया। पहले का तो आंसर ठीक ही है ना। सेकंड का आंसर है हमारा, सेकंड का आंसर बी है, ठीक है। थर्ड का आंसर हमारा ए है, ठीक है। ये डी नहीं है इसमें,
डी आंसर नहीं है इसमें। द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बीइंग ऑडिटेड नहीं है, ये सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट, जो प्राइमरी डिफरेंस है वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट ही है। ठीक है, ठीक इसको है। हटा देते हैं। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हमारा, फोर्थ का आंसर बी है, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ क्वेश्चन में ए और डी दो आंसर आ रहे थे, तो फिफ्थ का आंसर ए है, डी नहीं है, ये ए ही है। To encourage business towards broader development goals, फिफ्थ का। हाँ, अच्छा, सिक्स्थ का आंसर, ये तो सबका सही होगा मेरे हिसाब से, सिक्स्थ में तो कोई दिक्कत नहीं थी, सिक्स्थ का डी है, ठीक है। सेवंथ का आंसर हमारा है ये ए, सेवंथ का आंसर ए है, ठीक है। एट्थ का आंसर सी है, ठीक है। और नाइन्थ का आंसर हमारा, नाइन्थ में ए और सी आ रहे थे दो आंसर, तो नाइन्थ का आंसर ए है। मेन रोल है टू रिव्यू एंड हाँ, वेरीफाई, बिल्कुल, यही है। हाँ, हाँ, बिल्कुल ये- सही। सर नाइन्थ का डी होना चाहिए। किसका Applied मेन रोल? अकाउंट्स तो नहीं ए- देखते हैं ना सर, सोशल ऑडिट इम्पैक्ट रिपोर्ट देखते हैं, अकाउंट्स तो कोई बनते नहीं सोशल अकाउंट्स। ईच सोशल अकाउंटिंग पीरियड टर्म ही नहीं है सोशल अकाउंटिंग पीरियड की। सोशल क्यों नहीं है? रिपोर्ट भी तो देता है वो, बिल्कुल है। सोशल रिपोर्ट देगा ना। ऑडिट वो पीरियड दो- है ना। अरे वो audit- दो देता है, एक सोशल रिपोर्ट देता है, एक फाइनेंशियल रिपोर्ट देता है, तो फिर आंसर तो ए ही आना चाहिए ना। कंपनी का सोशल इम्पैक्ट देख रहे हैं, तो इम्पैक्ट ऑफ कंपनी तो सप्लाई चेन social ऑन द report- एनवायरनमेंट। वही तो है सोशल रिपोर्ट, सोशल इम्पैक्ट ही तो रिपोर्ट में दिखाएगा वो। अकाउंट वो की डी पूरी ऑडिटिंग होती है। पॉइंट नहीं आएगा, क्योंकि उसमें सोशल तो वर्ड ही कहीं दिया नहीं डी में। इम्पैक्ट ऑफ ए कंपनी सप्लाई चेन दे दिया ऑन द एनवायरनमेंट। अब वो क्या बात कर रहा है यहाँ, सोशल इम्पैक्ट की तो बात ही नहीं कर रहा डी पॉइंट में, तो कहाँ से आ जाएगा सर? यही आएगा, यही आएगा। और टेंथ सोशल का सोशल आएगा सी। हाँ, सोशल अकाउंट्स कौन से होते हैं फिर अकाउंट्स? देखो ऐसा होता है, सोशल अकाउंट्स भी होते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो एक सोशल एंटरप्राइज है, ठीक है, दे प्रोमलगेटेड स्कीम फॉर 3 years, तो वो जो ऑडिट पीरियड होगा, उसका जो अकाउंटिंग पीरियड होगा वो 3 years का होगा। वो 3 साल की इकट्ठी अकाउंटिंग करेगा, 3 साल की ऑडिटिंग करेगा, ऐसा होगा। इस तरह से होता है सोशल अकाउंटिंग में। नहीं, वो डाटा तो ये प्रिपेयर ये करेगा ना। हाँ, वो तो ये नहीं कि वो फाइनेंशियल नहीं, फाइनेंशियल नहीं, मतलब नंबर ऑफ मेंबर्स, अटेंडीज, और कोई भी किसी भी प्रोजेक्ट के लिए डाटा तो मेंटेन करेगा ना, उसी को तो रिव्यू करना हमने। सर वो तो फाइनेंशियल ऑडिटर देखेगा ना, हमें तो इम्पैक्ट देखना है, सोशल इम्पैक्ट रिपोर्ट। इम्पैक्ट डी में कहाँ आ रहा है? सोशल इम्पैक्ट, सोशल तो वर्ड ही नहीं है डी में। ना हो एनवायरनमेंट भी इंक्लूड है सोशल इम्पैक्ट में। नहीं, अरे ऐसा नहीं है, सर। ऐसा नहीं है। इसमें देखिए जो मेन आता है कि सोशल अकाउंट्स के अंदर, फॉर एग्जांपल लेट्स से एक कंपनी ने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करी है, या उसने किसी लेबर को कोई स्विंग मशीन बांटी है, या चाको कोई जी, हेल्थ चेकअप हाँ, किया है, चाको जी तो कहाँ वो पर था ये वाला पॉइंट तीनों आपका? साल में कितनी कितनी बांटी है, वो है सोशल अकाउंट्स। मतलब उसका रिव्यू होगा कि जो सोसाइटी Sir, को उसकी I will check. I am checking that sentence. I am checking. ओके I will revert. I will. पेज 89। I am sorry, my apology, sir. It is 89, second last paragraph, first line. It is correct. Option A. अभी दिखाई दिया, अकाउंट्स की सोशल अकाउंट्स भी होते हैं। social accounting. Yeah, it is Okay. there. Okay, okay. Yes. ठीक है, अगला नेक्स्ट देखते हैं, इससे आगे वाला। Which of the following is not one of Sir, the can you sustainability? Sir, can you increase the font size little bit? This. हाँ, Yeah. Okay. Yeah. हाँ, Marking is not. एक ही में कर देंगे। हाँ, तो इसमें देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये। Which of the following? This is an important question that I checked and correct. Which of the following is not one of the sustainability reporting standards? Global Reporting Initiative, PRI। हाँ, डी लग रहा है मेरे को भी। D होना चाहिए, IFRS. है ना? IFRS. IFRS। क्योंकि यहाँ जो दे रखा है, ये तो ग्लोबल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स दे दिया, ISO 6000 दे दिया, ये सारे दे दिए इसमें, ये
डी ही इसका आंसर होना चाहिए। अगला देखते हैं, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड इन 2000? ये तो पहले से भी आ चुका है सवाल, है ना? दिस क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड, तो बी हो जाएगा। हाँ, बी। डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल एंड सोशल ऑडिट इन मेथड्स आर? These options are some confusing options. Difference between financial and social audit in methods are? डी होना चाहिए। सी होना चाहिए, सी होना चाहिए, राइट? सी होना चाहिए, सही लग रहा है। सी। सही लग रहा है। स्टैंडर्डाइज मेथड फॉर फाइनेंशियल ऑडिट, ठीक है, हाँ। वो फॉलो करते ही हैं, वेरी एज पर प्रोजेक्ट, ठीक है। हाँ, सी होगा इसका आंसर। पर इसमें सर जो स्टैंडर्ड एसडीजी के स्टैंडर्ड के हिसाब से तो सोशल ऑडिट होगा ना, वेरी तो करेगा ही project एसडीजी में कहाँ से स्टैंडर्ड्स हैं? ऐसे कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड्स हैं, एसडीजी कोई स्टैंडर्ड नहीं है। रेगुलेशंस में नहीं है क्या? Yeah, it is there, but in the text it is not mentioned like that. It is a very as per project and then input from the company organization. That the two things are mentioned there. So what is the answer? C? सी, हाँ। Yeah, see please. महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीज हाउ मेनी डेज? ये तो है ही है ना, ये तो सिंपल ही है, 100 डेज था ये तो। अच्छा, CSR अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस द रिक्वायरमेंट फॉर? बी। बी लगा, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। ए होना चाहिए। No, it is impact assessment. इम्पैक्ट असेसमेंट है सर। नहीं, CSR का कह रहा है ना, CSR पॉलिसी। हाँ, सोशल इम्पैक्ट आएगा सीएसआर में। टू रेगुलेट है के रिक्वायरमेंट अमेंडेड। It is in the italics in the text. According to the amendment rules, companies with an average CSR spending of at least how much? हाँ जी। Yeah, this we discussed in the class. That हाँ, ये तो 5 करोड़ ही था, क्यों जी? yes, yes. ये तो 5 करोड़ ही है। Yeah. What is the full form of NGRBC? National Guidelines on Responsible Business Conduct. Right, B है ना? B है ना? Yes, sir. B. This B. अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ए सोशल ऑडिट? बी क्या? अब ये लग रहा है, बाकी तो कुछ है ही नहीं खास। बी। As per NREGA definition, social audit involves ये तो मेरे को तो पहला ही लग रहा है, ये आंसर ही लग रहा है। यही होना चाहिए। हाँ, लग रहा है पढ़ा हुआ है जैसे। Yes, yes. Yeah. क्योंकि एक बार पढ़ा हो ना तो याद आ जाता है ये पढ़ा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू क्वालिफाई एज अ सोशल ऑडिटर इन इंडिया एन इंडिविजुअल मस्ट बोथ बी एंड सी। डी आंसर नहीं, ए और सॉरी, ये तो बी मेंबर, ये वाला बी एंड सी। हाँ, तो डी हो गया ना। Yes, D. अभी देख ले आंसर इसके, पहले का आंसर डी बता रहा है। ए एंड सी। बी एंड सी होना चाहिए। बी एंड सी डी होगा ना, क्योंकि आईसीआई का क्या सर्टिफिकेट फ्रॉम द एनआईएसएम होगा तो सी है तभी तो होगा, और फिर रेगुलर एसआरओ के साथ, तो फिर आंसर डी होना चाहिए, बी एंड सी। तो पहले का आंसर है जी, पहले का आंसर डी था, ठीक है। दूसरे का आंसर बी है, देखते हैं। दूसरे का बी है, ठीक है। तीसरे का आंसर है सी, थर्ड का आंसर सी है, ठीक है।
फोर्थ का आंसर सी आ रहा है, ठीक है। फिफ्थ का आंसर आ रहा है बी, ठीक है। सिक्स्थ का आंसर आ रहा है सी, ठीक है। सेवंथ का आंसर आ रहा है बी, सेवंथ का भी ठीक है। एट्थ का आंसर बी, ठीक है। नाइन्थ का आंसर है, नाइन्थ का ये, ठीक है। और टेंथ का आंसर आ रहा है डी, सारी सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ ए फाइनेंशियल ऑडिटर? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इसमें सी आ जाएगा। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ ऑडिटर considers the larger ecosystem of stakeholders? इसमें तो सी आना चाहिए, सोशल ऑडिटर एंड फाइनेंशियल ऑडिटर दोनों। नहीं, लार्जर बोल रहा है ना, लार्जर इकोसिस्टम। लार्जर तो सोशल ही करेगा ना भाई, फाइनेंशियल वाला तो फाइनेंशियल देखेगा, सोशल ऑडिटर तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स देखेगा। पर जो सोशल ऑडिटर होगा वो फाइनेंशियल भी तो देखेगा ना, तो फिर लार्जर इकोसिस्टम में तो वो भी तो है। नहीं वो कह रहा है विच टाइप ऑफ ऑडिटर, कौन से टाइप का ऑडिटर। तो अगर सोशल ऑडिटर का नाम दे देना, सोशल ऑडिटर, हाँ तो बी ही होना चाहिए। Here stakeholder is constituted in the context of social audit. ओके, ठीक है। अच्छा, which of the following is a key metric for a social auditor? सोशल इम्पैक्ट ए। क्वालिटेटिव। What type of indicator do social auditors primarily deal with? क्वालिटेटिव बी। नहीं, दोनों ही करेगा। दोनों? अच्छा, Both. बोथ। वैसे तो वो प्राइमरीली पूछ रहा है। प्राइमरली में तो सर क्वालिटेटिव आता है, वैसे दोनों होंगे क्योंकि उसको तो इम्पैक्ट देखना, सोशल इम्पैक्ट तो क्वालिटेटिव आता है। सब प्राइमरी में तो दोनों ही आते हैं, सेकेंडरी में सिर्फ क्वालिटेटिव आता है, क्वांटिटेटिव तो देखते ही नहीं। प्राइमरी में क्वांटिटी खत्म हो जाती है, सेकेंडरी में तो सिर्फ क्वालिटी देखते हैं कि इम्पैक्ट, रीच, डेप्थ, इंक्लूजन कहां तक हुआ। हाँ सोनी जी, क्या आंसर है इसका? आंसर पूछ लेते हैं। है सोनी जी, तो बोथ करें इसको। वैसे तो प्राइमरी it is both both sir, that is both. from a sentence, that is from sentence from a text. Okay. Question, what type of methods does a social auditor usually use? बी। बी होना चाहिए फिर तो। बी होना for चाहिए, Bombay? प्रोजेक्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन। यस, हाँ बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, which of the following is not an eligibility criteria for becoming a social auditor? ए होना चाहिए सर। सी सी है क्योंकि आज ही वो इंडिया का फर्स्ट सोशल ऑडिटर ने एनरोल हो गया ना, प्रभाकर झा, तो उनको कोई डेवलपमेंट एक्सपीरियंस नहीं है। सी Being a chartered accountant, It is eligible. it is eligible. eligibility criteria specifically mentioned है, and under the aegis of ICI. Which principle of auditing emphasizes the security of information? कॉन्फिडेंशियलिटी होगा सी, है ना? सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ। Confidentiality is with respect to not disclosure. Here not talking about the disclosure, it is about containment of information. I guess it should be integrity. इंटीग्रिटी। नहीं, सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ। सिक्योरिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी होगा, राइट आंसर कॉन्फिडेंशियलिटी है, क्योंकि सिक्योरिटी सिक्योरिटी तो तभी रहेगी ना, कॉन्फिडेंशियलिटी रहेगी। नहीं, what if the confidentiality है लेकिन इंटीग्रिटी नहीं है? मुझे पता चल गई, मैंने कॉन्फिडेंशियल रखा लेकिन इंटीग्रिटी नहीं देखिए सर जी, अरे गिरीश जी आप ये देखो,
Which principle of auditing emphasizes the security of information? So when information will be secure, when it is confidential. Yes, sir. बिल्कुल सही है. Yes, sir. Yeah, chapter it is there, sir. That confidentiality, security of information. That is a heading of that part. Which of the following is not part of the code of conduct for social auditors? D. हाँ, D होगा, flexibility नहीं होगा. In order to become a social auditor, financial auditors need to A ही होना चाहिए तो ये तो होना है, हाँ ये तो है. कंप्लीट कोर्स. Ah, yes. बस Yes, sir. A ही होगा. Ah. Which of the following is a key competency or skill required for a social auditor? ए. हाँ, ये भी A ही लग रहा. ठीक. Knowledge. ठीक है जी. तो फर्स्ट का आंसर इसमें था हमारा. Sir, is it required to put the answers in a separate sheet? Then I can do like that next time. नहीं, ठीक है, ऐसे ठीक है. Instead of First this answer scrolling, कोई बात I नहीं. can share an हाँ. answer. This is okay. नहीं, कोई बात नहीं. सेकंड का B हो गया. सेकंड का B है. थर्ड का A है. ठीक है. फोर्थ का आंसर C है. कोई कंफ्यूजन होगा तभी देखेंगे, अदरवाइज तो सारे ठीक ही लग रहे हैं. फिफ्थ का B हो गया. सिक्स्थ में क्या आ रहा है? C. सिक्स्थ में C है. ठीक है. सेवेंथ भी C है. एट्थ का D है. और नाइन्थ में था A. नाइन्थ का A है. और टेंथ का भी A है. ठीक है. एट्थ दिखाइएगा सर जरा. एट्थ, हाँ, एट्थ में D आ रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी. ये आ रहे थे ना, ये 4 पॉइंट्स आ रहे थे ना इसमें. हाँ, आपने एट्थ का आंसर बी बोला है शायद. नहीं, D. हाँ, वही मुझे तभी मैं दोबारा देखा. नहीं, आंसर तो डी है. नहीं, D है. D फॉर दिल्ली. हाँ जी. वो कई बार बोलने में ऐसा लगता है B और D. अच्छा, ये हो गया सारा. अच्छा, मैंडेटरी I इम्पैक्ट. make it a complicated. The options I make it a complicated. Mandatory impact assessment for company spending more than rupees 5 crore as per. बताओ जी. A. 83. यही लग रहा. Social auditors use which type of indicators? ये तो फिर 2 सी हो गया. बहुत. हाँ, बहुत ही हो गया. Which type of auditor is eligible with a graduate degree and relevant experience in the development sector? सोशल ऑडिटर ही होगा. हाँ, social auditor. अच्छा, what is the primary difference in the methods used by the financial auditors and social auditors? ये पहले आया ही था. ये रहा ए होगा फिर तो. हाँ, यही होगा इसका आंसर. What is the primary focus of social auditors when comparing organizations? डी होना चाहिए. डी लग रहा. Which of the following principles of auditing involves providing information based on samples of available information? एविडेंस बेस्ड अप्रोच. हाँ, इसमें तो एविडेंस बेस्ड ही होना चाहिए. What is the primary difference between the perspectives of financial auditors and social auditors?
A. A. Which type of auditor is more concerned with the societal ecosystem and all stakeholders involved? Social. B. Social हो जाएगा, B हो जाएगा. According to the code of conduct for social auditors, which principle is related to avoiding compromise in judgment due to bias or influence? Integrity. A. अगर ऑप्शन में इंडिपेंडेंस होता तो तब भी आंसर इंटीग्रिटी आता है. इंटीग्रिटी रहता. बोल रहा है अवॉइडिंग कॉम्प्रोमाइज इन जजमेंट ड्यू टू बायस और इन्फ्लुएंस. इंडिपेंडेंस तो अलग होता है, ये तो तभी इंटीग्रिटी होता है आंसर. ऑब्जेक्टिविटी नहीं हो सकता क्योंकि बायस नहीं है वो. इंटीग्रिटी ज्यादा सही. चलो इंटेग्रिटी पे देखते हैं. डेफिनेशन देखनी पड़ेगी तीनों की, इंटीग्रिटी, इंडिपेंडेंस, ऑब्जेक्टिविटी और कॉन्फिडेंशियलिटी. इसका आंसर तो ए ही है सर. इंटेग्रिटी में बोल रहा है ट्रूथफुल, फेयर डीलिंग एंड ऑनेस्ट, शुड नॉट बी एसोसिएटेड विद रिपोर्ट्स, रिटर्न्स. सर फेयर डीलिंग आ गया ना. हाँ, और लेकिन ऑब्जेक्टिविटी में देखो क्या आ रहा है. ऑब्जेक्टिविटी में आता है ऐसे विल नॉट कॉम्प्रोमाइज जजमेंट बिकॉज ऑफ बायस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अंडर एनी पर्सन्स और इंस्टीट्यूशनल इन्फ्लुएंस. तो ये तो फिर ऑब्जेक्टिविटी हो गया इसका आंसर. हाँ, ऑब्जेक्टिविटी, वही मुझे भी ऑब्जेक्टिविटी लग रहा था, इसलिए मैं कह रहा था ऑब्जेक्टिविटी. इसका आंसर ऑब्जेक्टिविटी ही होना चाहिए. इंटेग्रिटी का मतलब तो ये है ना भाई, उसकी खुद की इंटेग्रिटी है, वो चोर नहीं है. इंटेग्रिटी कुछ अलग चीज है. ऑब्जेक्टिविटी मतलब दो आदमी उसके सामने आए, कोई बायस नहीं होगा वो उसके बावजूद. अगला है, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ द ऑडिट कंक्लूजन फॉर सोशल ऑडिटर्स? मेन फोकस ऑफ द ऑडिट कंक्लूजन. Reflection of social impact. सोशल. Right. बी. B. हाँ, मेन फोकस अगर पूछ रहा तो बी ही होना चाहिए. Social impact. मेरे यहाँ से बी है. अब इसके आंसर्स देख लेते हैं. फर्स्ट का आंसर ए है. फर्स्ट का आंसर तो ठीक ही था हमारा, ए ही था ना इसमें. ये आंसर हमारे कहाँ चले गए? ये था ना. फर्स्ट का आंसर ए है, सेकंड का आंसर सी. ठीक है. थर्ड का आंसर बी है. ठीक है. फोर्थ का आंसर ए है. ठीक है. फिफ्थ का आंसर डी है. ठीक है. सिक्स्थ का आंसर है हमारा डी. ठीक है. सिक्स्थ का डी है. सेवंथ का ए. सेवंथ का ए हो गया. एट्थ का बी हो गया. ठीक है. नाइन्थ का बी है. नाइन्थ का ऑब्जेक्टिविटी है, बी ही है. और टेंथ का आंसर है हमारा बी. टेंथ का आंसर हमारा, ये टेंथ का आंसर हो गया. अच्छा, ये कहीं और मार्क कर दिया गया, ये यहाँ मार्क कर दिया बी. ठीक है. टेंथ का आंसर बी हो गया. अब चलते हैं आगे. लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाए चाको जी आपने. व्हाट इज द इसेंशियल नॉलेज? Thank you. Thank you. What is the essential knowledge required for a social, and I will share it in the group also. So what is the essential knowledge required for a social auditor? Essential knowledge for a social auditor: compliance issues, stakeholders consultation methods, thorough knowledge of the problem solving skills. बी. गिरीश जी क्या बोल रहे हो? बी फॉर बॉम्बे. सी में डाउट इसलिए आ रहा है क्योंकि नीति आयोग एसडीजी बना हुआ है कहीं इंडेक्स कोई. हाँ, बना हुआ. सी तो फिर होना तो- चाहिए फिर आंसर सही- सर.
डी होना चाहिए ऑडिटर तो सोशल गोल्स तो सर, डी ऐसे और डी बता रहे हैं। डी आई थिंक डी आंसर होगा। क्योंकि प्रॉब्लम थोड़ी ना सॉल्व करनी है, ना कोई एनालिटिकल होना है, हमें तो स्टेक होल्डर को कंसल्ट करना है, सारे स्टेक होल्डर्स, क्योंकि नॉलेज और डी में ही है सर, बी बी और डी में ही डालो। मुझे तो सी लग रहा है सर। Sir, in page 95, you can मैम check in थोरो page नॉलेज की 9. जरूरत नहीं है ना, थोरो नॉलेज तो ऐसा कहीं नहीं 9 लिखा five, है। 9 क्या five, है आंसर? page 9. There is a part known as 95 में essential 1 में बोल रहा है वो, यही नीति आयोग वाला ही होगा इसका आंसर। सी है ना? हाँ जी सर, सी लग रहा है। सही है, सही है। हाँ, क्योंकि मैंने एक बार ये नजर मारी थी तो मुझे लग रहा था बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। What is an important skill for a social auditor in stakeholder consultation? ये इसका आंसर होना चाहिए ये रहा डी, एबिलिटी टू डील विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। डी, स्टेकहोल्डर कंसल्टेशन। मेरा डी आंसर है। डी है। डी ही लग रहा है, या तो ए हो सकता है या डी हो सकता है इसमें। सर एक्टिव लिसनिंग सुनने से थोड़ी कुछ होगा, उसको तो कंसल्टेशन है तो डिस्कशन करना है ना उन लोगों के साथ, इसीलिए डी होना The चाहिए। auditor should be aware of the different consultation methods. The auditor should be able to deduce the relevance and suitability of the consultation methods adopted in the consultation impact report. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा डी। बी है सर, डी होना चाहिए आंसर तो। हाँ, डी ही किया। ठीक है। What is the personal professional attribute required for a social auditor? ये होना चाहिए सेंसिटिविटी टू सोशो इकोनॉमिक इश्यूज। एट्रीब्यूट की बात कर रहा है, एट्रीब्यूट मतलब क्वालिटी हो गया एकदम से। हाँ, एसेंशियल एट्रीब्यूट। डी होना चाहिए आंसर तो। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, सेंसिटिविटी टू इश्यूज। अच्छा, व्हाट इज एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर एम्पैनलमेंट ऑफ सोशल ऑडिटर्स विद एसआरओज? इसमें तो डी होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव। तो पिछले वाले में ए होना चाहिए, किसमें? थर्ड पॉइंट में, लास्ट क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में ए होना चाहिए। अरे इसमें ए कैसे होगा? सॉलिड एथिक्स, मतलब अगर वो उसके एथिक्स है कि वो गरीबों की सेवा नहीं करना चाहता तो करेगा ही नहीं, वो काम ही नहीं करेगा। ही शुड बी सेंसिटिव ना। एक्चुअली बात ये है ना गिरिजी, इसमें बोल रहा है पर्सनल प्रोफेशनल एटीट्यूड, पर्सनल एट्रीब्यूट की भी बात कर रहा है बेसिकली। खैर कोई बात नहीं, हम दोनों मार्क कर देते हैं, देख लेंगे आंसर जो भी आएगा उसमें क्या है, हम दोनों मार्क कर देते हैं। ठीक है, पेज 96.6। Personal professional attributes include a high code of conduct governed by law with solid ethics and integrity, honesty, trustworthiness, and ability to remain independent from personal interests. बात तो सही है, यही है जी आंसर इसका। ये तो बहुत अजीब आंसर है। नहीं, वो क्या है भाई, वो बुक से ले लिए गए ना आंसर। यानी कि किताब को पढ़ना पड़ेगा। हाँ, किताब तो पढ़नी पड़ेगी, और क्या, बिना ऐसे थोड़ी। वर्ड बाय वर्ड। बिना किताब पढ़े हुए बोल रहे हैं हम, तो किताब तो भी हाथ ही लगे। What is an important criteria for empanelment of social auditors with SROs? ये मेरे हिसाब से बी होना चाहिए इसका आंसर तो, क्योंकि अगर आपके डिसिप्लिनरी केसेस होंगे तो फिर वो एम्पैनल नहीं करेंगे। नहीं, इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया क्या मतलब की इसमें बात कर रहा है, एम्पैनलमेंट की बात कर रहा है, तो अगर ये थोड़ी लिखा हुआ नॉट एम्पैनलमेंट, नेगेटिवली वर्ड नहीं है सर, नेगेटिवली नहीं है ना, तो ऑल ऑफ द। लेकिन क्वेश्चन में लिखना चाहिए था कि नो पेंडिंग केसेस। नहीं, यही होगा इसका आंसर, बी ही होगा, देख लेना आप।
क्योंकि पोजीशन ऑफ, क्योंकि जब एम्पैनलमेंट के टाइम पर दे विल नॉट आस्क फॉर स्पेसिफिक सोशल सेक्टर एक्सपर्टीज ना. At the time of empanelment, even individual may be empaneled, so size is also not important. What is important is that there should not be any disciplinary cases or sanctions against the individual firm or institution. हाँ वो लेकिन नो डिसिप्लिन केसेस शायद आना चाहिए था जहाँ पे. नहीं वो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है ना, तो दिस इज इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया. भाई नेगेटिव या पॉजिटिव वर्ड से नहीं होगा ना. इफ देयर आर डिसिप्लिनरी केसेस देन दे विल नॉट एम्पैनल यू. दैट इज द पॉइंट. What is the scope of work for a social audit? Anyway, we'll see the answers. What is the scope of work for a social auditor managing the audit program? Scope of work. Managing the audit program. Define objectives, scope and criteria for each individual audit. मैं तो बोलूंगी डी. डी तो नहीं है मैडम. सोशल ऑडिट की बात कर रहे हैं तो फिर तो ए. ऑडिट के लिए तो ए होगा, पर सोशल तो है ही नहीं ना उसमें. पर ईच इंडिविजुअल तो सोशल ऑडिट बोलता, कुछ भी नहीं लिखा. ये तो एनुअल ऑडिट, ये तो फाइनेंशियल ऑडिट के लिए भी हो सकता है. नहीं ऐसा नहीं है. ए लग रहा है इसमें. या तो ए होगा या फिर डी. ए ही लग रहा है सर. डी से तो अच्छा सी भी हो सकता है. स्कोप ऑफ वर्क फॉर अ सोशल ऑडिटर. पर इंटरव्यू तो प्रोग्राम के लिए जरूरत नहीं है ना. 5.7 scope of work for social 96 page 96. The last line it is written. Yeah, last line 96. 96. Okay. Define objectives, scope and criteria. So A will be the answer. Ability to make reasoned judgments in the audit situations. इसको क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं मेरे को तो. प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म ही होना चाहिए. What type of audit activities involve interaction between the auditor's personnel and the auditor's team? इंटरएक्टिव क्या? हाँ वही होगा. इंटरेक्शन बोल रहा है ना, तो इंटरेक्शन में तो यही होगा. ऑन साइट. Auditor's personnel and the audit team. ऑन साइट भी हो सकता है क्या सर? ऑन साइट ही है सर. साइट में ही होगा सर ये इंटरेक्शन तो. ऑन साइट तो मतलब उसी जगह पे जहाँ पे है. क्लैरिटी नहीं है क्वेश्चन में. हाँ जी. Table there is some sentences. Page 97. क्या है इसमें? Page 97. Hello. You got Interactive audit activities involve interaction between the auditor's personnel and the audit team. हाँ सी बिल्कुल ठीक है. ऑन साइट ऑडिट एक्टिविटीज आएगा. नहीं सी हो गया ना, ये हो गया ना. Interactive audit activities involve interaction between the auditor's personnel and the audit team. तो सी होगा ना आंसर इसका. बिल्कुल ठीक सी है. सी. What type of audit activities involve no human interaction? ये होगा नो रिमोट. हाँ रिमोट. हाँ यही लग रहा है. Development sector experience required for a postgraduate to be a social auditor is 3 साल है ना? हाँ 3 साल है. राइट. ग्रेजुएट के लिए 6 साल है. पिछले वाले का सी होगा. इंटरएक्टिव ऑडिट किसका सर? नहीं सर जी, क्या होना चाहिए? 8 का बी होगा जी. नो ह्यूमन इंटरेक्शन है ना. डी होना चाहिए. नॉन इंटरएक्टिव. अच्छा हाँ मैं वो थोड़ा
नहीं, नो ह्यूमन इंटरेक्शन है ना जी, नो ह्यूमन इंटरेक्शन। हाँ, तो रिमोट ही होगा ना। तो हाँ, यस 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 सर, सॉरी सर सर। बुक में तो नॉन इंटरेक्टिव ऑडिट एक्टिविटीज लिखा है। नो ह्यूमन इंटरैक्शन में हाँ जी, नो ह्यूमन इंटरेक्शन में नॉन इंटरेक्टिव ऑडिट एक्टिविटीज। नॉन इंटरेक्टिव ऑडिट एक्टिविटीज इन्वॉल्व्स नो ह्यूमन इंटरेक्शन with individuals representing the auditee, but do involve interaction with equipment, facilities and documents. अच्छा, नॉन इंटरेक्टिव ऑडिट एक्टिविटीज इन्वॉल्व नो ह्यूमन इंटरेक्शन बट डू इन्वॉल्व इंटरेक्शन विद इक्विपमेंट, फैसिलिटीज एंड डॉक्यूमेंटेशन। नॉन इंटरेक्टिव होना चाहिए था इसका। तो Okay. उस पे रिमोट के बारे में कुछ नहीं लिखा। Remote audit activities are performed at any place other than the location of the auditee regardless of the distance. Remote में तो सिर्फ इतना मेंशन है। दोबारा Okay. बोलना। Remote audit activities are performed at any place other than the location of the auditee regardless of distance. तो अच्छा, रिमोट में तो ये सिर्फ लिखा ये है। मेंशन है कि हाँ प्लेस अलग होना चाहिए, तो फिर नॉन इंटरैक्टिव आएगा। इसमें नॉन इंटरेक्टिव होना चाहिए। तो नॉन इंटरेक्टिव आपका डी आ गया इसका आंसर, ये बी नहीं आएगा। एक काम और कर सकते हैं, इसी फाइल को रिफाइंड और कर देते हैं, पेज नंबर लिखते हुए सबके सामने, बाद में अभी नहीं। नहीं, नीचे तो लिखे रखा ना। 9th का क्या है, डेवलप, ये तो हो ही गया था ना मेरा, ये तो 3 years हो गया था इसमें, है ना। और फॉर एम्पेनलमेंट ऑफ सोशल ऑडिटर, SRO shall consider experience। ये सेकंड सेकंड ही होना चाहिए। अच्छा, इसमें 4 ऑप्शन दे दिए। हाँ, तो अब 4 ऑप्शन के हिसाब से बताना पड़ेगा क्या देंगे। सब वेटेज वाइज देते हैं ना, तो चारों ही देखेंगे। डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए नेगेटिव वेटेज है, तो नेगेटिव वेज भी तो कंसीडर करना पड़ेगा, तो चारों ही हाँ, देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आंसर होगा, डी। डी होगा फिर तो। सर लेकिन ऐसा कहीं इतना पहले इसी को देख लेते हैं, लास्ट वाले को। लास्ट वाले का आंसर डी ही है, 1 2 3 and 4। अच्छा, फर्स्ट का आंसर हमारा सी है। सर पेज 96 सेकंड बुलेट। एक मिनट, फर्स्ट का आंसर ये था ना मेरा, फर्स्ट का आंसर सी था, ठीक है। ये तो ठीक है। सेकंड का आंसर डी था। सेकंड का आंसर ए है, एक्टिव लिसनिंग। अच्छा, ये गलत। सर ये इम्पोर्टेंट स्किल। हमने क्या लिखा, डी। अच्छा, एक्टिव लिसनिंग। ओ, ये तो बड़ा अजीब है। नहीं, मुझे लग रहा था ये एक्टिव लिसनिंग, मैं तो हिंट किया भी था कि एक्टिव लिसनिंग हो सकता है, इंपॉर्टेंट स्किल है ना उसको। ऐसा तो फिर हम गलत ही कर जाएंगे, ये तो मतलब कॉमन से बियॉन्ड ही जा रहा नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। थर्ड क्या है, थर्ड का ए है, पर्सनल प्रोफेशनल एट्रीब्यूट क्या है इसका। हाँ, ये तो सॉलिड एथिक्स एंड इंटीग्रिटी हमने पढ़ा ही था। और वैसे भी सर स्टेक होल्डर कंसल्टेशन की बात हो रही है, हम कंसल्ट तो तभी एडवाइस दे पाएंगे ना जब सुननी होगी और समझी होगी अच्छे से बात। फोर्थ में क्या कह रहा है, फोर्थ में सारी चीजें कह रहा है, ऑल ऑफ द अबव। फोर्थ का आंसर डी है। फोर्थ का क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन था फोर्थ का, ये नहीं है, इसका आंसर है डी। साइज ऑफ द फर्म भी देखेगा, डिसिप्लिनरी केसेस भी देखेगा, पोजीशन भी देखेगा, स्पेसिफिक सेक्टर। सर इन दोनों क्वेश्चन के लिए पेज नंबर 96 सेकंड बुलेट है, लास्ट वाला भी और ये वाला भी। हाँ, व्हाट इज द स्कोप ऑफ वर्क फॉर अ सोशल ऑडिटर मैनेजिंग द ऑडिट प्रोग्राम। फिफ्थ का आंसर क्या है, फिफ्थ का आंसर ये है, ठीक है। सिक्स्थ का डी है। अरे, सिक्स्थ में डी आ रहा है, एबिलिटी टू मेक रीजन्ड जजमेंट इन द ऑडिट सिचुएशंस।
ड्यू प्रोफेशनल केयर। देख लेते हैं एक बारी कहाँ पर है ये। ड्यू प्रोफेशनल केयर के से लिया होगा ना ये पॉइंट। ड्यू प्रोफेशनल केयर में बोलता है एप्लीकेशन ऑफ डिलीजेंस एंड जजमेंट इन ऑडिटिंग। तो सीधा रीजन जजमेंट की बात ही नहीं कर रहा। नहीं, लास्ट में देता है ना, an important factor in carrying out their work with due professional care is having the ability to make reasoned judgment in all audit situations. अच्छा, ये ड्यू प्रोफेशनल केयर। ये डी आ रहा है इसमें। What type of audit activities involve interaction? इसका तरीका यही है कि भाई एक बार इसको मार्क कर लो, फिर जो गलत है उनको ध्यान दो खास तौर से। What type of audit activities involve interaction between the auditors panel? अच्छा, इसमें क्या है? ये तो ठीक ही होगा, इंटरैक्टिव। 7th का सी है, ठीक है। बाकी सारे ठीक है नीचे के। 8th का डी है। ये सब बाकी सब नीचे देख लिए मैंने सारे। 9th का भी है, ठीक है। हाँ, और 10th का हमारा डी है, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। तो ही बेसिकली वो मेजर गलत रहे ना, वो स्किल वाला और प्रोफेशनल केयर है स्केप्टिज्म के बदले में, और ऊपर वाला है तो अभी तक बड़ा अजीब सा ही लग रहा है मुझे। Which क्या बुक से देखना पड़ेगा। Which of the following is not a type of audit evidence? डॉक्यूमेंट्री, ओरल, फिजिकल, हाइपोथेटिकली यही होगा। What type of data is obtained from first-hand sources and needs to be included in the ये तो प्राइमरी डेटा हो जाएगा। अच्छा, which of the following sampling methods is a probabilistic sampling method? ये तो प्रोबेबिलिस्टिक है। रैंडम सैंपल नहीं, स्नोबॉल हो सकता है। स्नोबॉल ही लग रहा है मुझे तो। स्नोबॉल, क्योंकि वो पढ़ा तो था स्नोबॉल टाइप का कुछ ऐसा, इसी में था ये स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग वगैरह वगैरह। हाँ उसमें पढ़ा था मैंने। What is the characteristic of audit evidence that signifies its reliability? रेलेवेंस। रिलायबिलिटी की बात कर रहा हूँ। नहीं, रिलायबिलिटी तो कॉम्पिटेंस। Characteristic of audit evidence that signifies its reliability sufficiency, sufficiency तो नहीं होगा, या तो timeliness होगा या relevance हो सकता है। relevance, मेरे ख्याल से तो रेलिवेंस ही है। चेक कर लेते हैं सर इसको। कॉम्पिटेंस तो नहीं हो सकता। No, the page 101, the first sentence is competence signifies the reliability of an audit evidence. हाँ, कॉम्पिटेंस है ना, कॉम्पिटेंस है ना। हाँ, Yes, yes. कॉम्पिटेंस। ओके, तो कॉम्पिटेंस होगा, सी है। ये अगले का तो बी है, क्वालिफाइड। What type of opinion is given as a written unable to obtain sufficient appropriate audit evidence? क्वालिफाइड ओपिनियन। हाँ। What should the social auditor evaluate when assessing the subject matter information against the applicable criteria? वैसे तो रिटन रिप्रेजेंटेशंस की भी वो बात कर रहा था, और पर ए भी होना चाहिए, सफिशिएंसी एंड प्रॉपरनेस ऑफ द एविडेंस, सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन अगेंस्ट क्राइटेरिया, सोशल ऑडिटर शुड इवैल्यूएट द सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन। बोल रहा है अगेंस्ट द एप्लीकेबल क्राइटेरिया। हाँ, तो फिर एप्रोप्रिएट। अगेंस्ट में तो शायद पब्लिक ओपिनियन हो सकता है। पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट की बात कर रहा है ना वो,
कि भाई अगर उसका कुछ एविडेंस आ रहा है और वैसे उसको एविडेंस अगेंस्ट लग रहा है तो क्या चीज है, पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट है। The social auditor should evaluate the sufficiency and appropriateness of the evidence. ये आंसर है इसका। मेरा ए है ना? हाँ ए। ए ये आंसर। Which of the following should be considered while building evidence during a social audit? सर सी। Building evidence, relevance and reliability, consistency of evidence. हाँ ये तो बात ठीक है, ये लग रहा है सी ही लग रहा है, सी में दोनों आ जाएंगे ना। Which of the following is an example of primary data? ये तो सी ही आएगा। इंटरव्यू की स्टेक होल्डर्स है ना, प्राइमरी डेटा पे। यस प्राइमरी डेटा। What is the scope? What is the scope limitation in a social audit? Scope limitation क्या है? Lack of cooperation. Appropriate evidence A। ए भी हो सकता है, ए या डी में से ही कुछ होगा। अब ए और डी में से कौन सा बेटर लग रहा है? ए लग रहा है सर। आप दोनों लिख लीजिए, पता चल जाएगा कौन सा ठीक है। दोनों लिख देते हैं। और 10th है, what should the content of audit conclusions address? Content of audit conclusions accept the conformity। B। सर सी। C। Extent of conformity with the social audit criteria, achievement of audit. हाँ सी। ठीक। और उल्टा चलते हैं, है ना। 9th पे थोड़ा सा कंफ्यूजन था ना अपने को। 9th का आंसर हमने क्या दिया? डी। 9th का आंसर ए है। ए ठीक है ना, वही। हाँ ए ये इनेबिलिटी टू ऑपरेट। हाँ ये तो स्कोप ऑफ लिमिटेशन है इनेबिलिटी टू ऑब्टेन। हाँ तो ये है भी इसी में। If the social auditor is unable to obtain sufficient appropriate evidence, a scope limitation exists. ये बुक की वर्डिंग में characteristics of audit evidence में। अच्छा ऊपर देखते हैं, फर्स्ट से देख लें। फर्स्ट का हमारा आंसर था डी है। हाँ ठीक है, हाइपोथेटिकल। डी सेकंड का ए है, ठीक है जी। हाँ सेकंड भी ठीक है। अच्छा थर्ड का आंसर हमारा, उसका सिंपल रैंडम है। थर्ड का थर्ड का स्नोबॉल बोल रहे थे ना। हाँ जी थर्ड गलत हो गया। थर्ड का सी है, सिंपल रैंडम है। कंपिटेंस ये भी गलत है। थर्ड में एक काम करते हैं कि वो सारे क्राइटेरिया भी दोबारा देख लेते हैं वहां पर जाकर के। हाँ सर थर्ड खोलिए जरा, है ना। थर्ड में इसके सारे क्राइटेरिया भी एक बार देख लेते हैं। Simple random in page number 100, sir. 100. पेज नंबर 100। ओके That is third one. Third simple random it is mentioned there. अच्छा हाँ, the auditor needs to use appropriate techniques and sample size to ensure reliability, accuracy and validity of information collected to derive evidence conclusions. Depending on the nature of the social project, a combination of probabilistic sampling methods, simple random, systematic, cluster, stratified और नॉन प्रोबेबिलिस्टिक मेथड्स। ये नॉन प्रोबेबिलिस्टिक हैं, वो प्रोबेबिलिस्टिक की बात कर रहा है। अच्छा स्नोबॉल नॉन प्रोबेबिलिस्टिक में है। हाँ इसीलिए मैं ऐसा नाम याद आ रहा था बस। वो नॉन प्रोबेबिलिस्टिक है। कोटा, जजमेंटल और स्नोबॉल ये नॉन प्रोबेबिलिस्टिक है। तो फिर से सिंपल, इसमें क्या है? सिंपल रैंडम और स्ट्रेटिफाइड भी इसी में है, क्लस्टर भी इसी में, स्ट्रैटिफाइड क्लस्टर समझ में। ठीक है और सिस्टमेटिक। हाँ ये है, ठीक है।
तो इसका हो गया। अच्छा, फोर्थ का आंसर हमारा, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑडिट एविडेंस दैट सिग्निफाइज इट्स रिलायबिलिटी? सर 3 का आंसर क्या होगा सर? 3 का आंसर किसका? 3 का आंसर सी है, सिंपल रैंडम। ओके सर। हाँ, ये पढ़ा ना अभी 100 पेज के ऊपर, 100 पेज पे Yes, 7th पॉइंट है। अच्छा, फोर्थ का आंसर क्या है? फोर्थ का आंसर सी है। फोर्थ का तो सी ही दिया हमने। और कंपिटेंस हाँ हाँ, फिफ्थ का आंसर क्या है? फिफ्थ का आंसर बी है, ठीक है। हाँ, सिक्स्थ का आंसर है ए, सफिशिएंसी। सिक्स्थ का ए भी ठीक है, सफिशिएंसी। सेवंथ का आंसर है हमारा बोथ ए एंड बी, ये भी ठीक है। एट्थ का आंसर हमारा सी है, एट्थ का सी ठीक है। नाइन्थ का ए है, ठीक है, ये भी ठीक है। और 10th का हमारा सी, 10th का सी, ये भी ठीक 10th है। का सी है, सही, हाँ ठीक है। वो स्नोबॉल उस चक्कर में रह गया, वो नॉन प्रोबेबिलिस्टिक है, ये लिखा था प्रोबेबिलिस्टिक। चलिए और आगे चलें, बस दी एंड हो गया इसका तो, है ना जी? हाँ। पर बहुत अच्छे Yes, बहुत sir. अच्छे क्वेश्चन बनाए सर आपने, बहुत ही Yes, बढ़िया sir, बहुत क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन है, मेनी मेनी बहुत- थैंक्स। हाँ, सोनी बहुत चाको जी अच्छे ने, क्वेश्चन है Yeah, चाकू thank you, जी। thank you, sir. चाकू जी आपने Yeah. बहुत मेहनत करी है, बहुत अच्छे हाँ, क्वेश्चन। बहुत अच्छे आप क्वेश्चन। भी हमारा एग्जाम सेट कर दो, हमारा सब पास हो No, जाएंगे। no, no. I seek some help from other. One of my friend also helped me. Then Okay. we dropped this. Yeah. Whatever, please Okay, talk to NISM that you are a very good teacher and you can make questions. तो आज यहीं पर ही एंड करें Yes, इसको, sure. है ना? हाँ, और क्या, बाकी कल करते हैं। और अच्छा, राजेश जी, आप वाले क्वेश्चन डिस्कस करें क्या? सर पूछ लो बाकियों से, वो आपको भेजे ही हुए मैंने। सर कल कर लो ना सर। चलो कल कर लेते हैं, ठीक है, कल कर लेते हैं, कोई नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मैंने जो 20 क्वेश्चन करे हैं वो भी जरा देख लेना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और Yes, राजेश जी वाले क्वेश्चन भी आई पोस्ट इन द ग्रुप। हाँ जी। और हैंड राइटिंग थोड़ी खराब है